explain what are the, so sir, by please. I will explain what are the layers which will be available for you in the field, okay, to be visualized, okay. तो उससे यूज करके आपने वहाँ तक पहुँच जा सकते हैं, okay. उसके यूज करके अगर आपने माना जाएगा that is the actual coordinate of that land parcel, you can take that coordinate also, okay. But the decision will be yours, okay. Only the help will be given by the layers which is present here. ओके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्या क्या लेयर मिलेगा। क्यों अभी जो पता है आपने जो थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्या अभी जो पता है क्या थोड़ा एक्सप्लेन करो। क्या? अभी जो बात की ना। हाँ हाँ आपको मैंने ORI से एक्सप्लेन करूंगा, ORI दिखा के एक्सप्लेन करूंगा। RI जी क्या हुआ? छोड़ दो जो भी दिख रहा है ये तो one will be based on 3D, okay. For all purposes you can use 3D. There may be little bit difference because of the featureization, the methodologies, okay. But you can for all purposes you can use 3D, it will be more accurate, okay. तो आपको ये डेटा मिलेगा, बिल्डिंग फुटप्रिंट मिलेगा, ओके, इन 3D एंड कंपाउंड वॉल मिलेगा जो काम की है, ओके. एंड फेंस मीन्स देयर इज नो पक्का कंपाउंड वॉल बट देयर इज अ काइंड ऑफ अ लाइक आयरन से जो बनाते हैं ना वो वाला होगा, ओके. आयरन मेश से या क्या बोलते हैं इसको, हाँ बारबर्ड वायर से जो बनते हैं वो वाला होगा, ओके. So that will be, if at all that can be viewed, that is viewable, that will be made. Otherwise, that also will not be there. If at all there is some bushes, hedges, if that are available, that also will be marked as a the boundary में आ जाएगा, property marker में वो सब आ जाएगा, ठीक है? आगे? Just a moment, he is loading the data. There is some problem with that. So basically, tomorrow we will be going with 4 teams. Okay, which team whom? Team 1 कौन ले रहा है? अरे यार चलो ठीक है. Team 1 will be with Kameshwar Rao. Okay, Team 1 with Kameshwar Rao. Team 2 with Satyanarayana. Team 3 with Anurag. Team 4 with Omkar. So Team 1 will be Mr. Kameshwar Rao. Team 2 Satyanarayana. Team 3 will be Anurag. Team 4 will be Omkar. So you will go to different places. Okay. कोई दूसरे का कोई लेना देना नहीं होगा. You will be in a working in a far off distance, at least 100 meter दूर तो होगा. You will be doing the separately, work separately. You will be measuring the coordinates of the land parcel vertices. Okay, where there it is visible. Like from the ORI, if possible, if in the ORI, if it is clearly visible that this is the land parcel. Suppose you are taking the compound wall. Okay, compound wall तो इसमें clearly visible है तो उसी में point लेने के लिए कोशिश करना है. नहीं है तो टेक द पॉइंट यूजिंग द कोर्स, दैट इज GNSS रोवर. कल आपको प्रोसीजर दिखाया होगा कि GNSS रोवर से कैसा काम करना है, पूरा उन्होंने स्टेप बताया होगा. कल जाके दूसरा एक एप्लीकेशन है, TMM एप्लीकेशन है, उससे थ्रू भी करने के लिए हमें दिखाएंगे. तो उससे थ्रू आपको डेटा आपको जो मोबाइल एप्लीकेशन में आ जाए. ओके हो गया. हाँ 2D. Alright, very good. And compound property market. Okay. So
for your clarity again, okay, whatever had happened, whatever they have shown the application, उसका part अलग है. हमें जो data हमारा सर्वे ऑफ इंडिया एज अ मैप वन देगा, यही data layers रहेगा इसमें. Okay, what are the layers? You can see here. नहीं, one is utilities. यूटिलिटीज में क्या क्या है? टावर है, यूटिलिटीज है, पाइलॉन है, वायर मास्ट है, पावर लाइन है, पाइपलाइन है. ये सब आपका कोई काम के लिए नहीं है. It is associate other data. Okay, if you want, you can use that. Okay. So पाइपलाइन पावर लाइन से आपका प्लान पार्सल का तो कोई मतलब नहीं है, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट इज, इसको तो मैं ऑफ कर रहा हूँ. दैट इज, नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रैफिक सिग्नल, रोड सेंट्रल लाइन, रेलवे लाइन, डिवाइडर, साइड वॉक, ब्रिज, ट्रैफिक सिग्नल, रोड पॉलीगन, बस स्टेशन. इसमें से कौन सी डेटा आपका काम में है? रोड पॉलिंग. बस स्टेशन भी है. हाँ, बस स्टेशन. अगर बस स्टेशन का तो एरिया है तो आपको वो भी काम में आ जाएगा. ओके, हाँ ठीक है, ठीक है. ओके, सो यू आर द बेस्ट जज. ओके, रादर देन मी, यू आर द बेस्ट जज, यू आर द learning people, like you can tell what are the data which can be very useful to you. So all these are polygon data. Okay, and road center line is a line data. Okay, line feature. बाकी सब तो polygon feature है. तो इसको भी मैंने माइनस कर रहा हूँ. सो देन हिस्टोग्राफी फीचर्स, स्पॉट टाइप, 3D, कॉन्टूर 2D, कॉन्टूर 3D. ये प्रॉपर्टी पार्सल का कोई, देयर इज नो कनेक्शन. ओके, अनदर ग्राउंड सर्वे पॉइंट्स. दिस इज फॉर सर्वे ऑफ इंडिया पर्पस ओनली. ग्राउंड सर्वे पॉइंट्स को आपसे कोई मतलब नहीं है. दैट इज कंट्रोल पॉइंट चेक पॉइंट व्हाट वी गिव फॉर आवर ORI डेटा एंड फॉर करेक्शन अदर थिंग्स. ओके, ये प्रॉपर्टी मार्कर्स में छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट आपको मैं आज मैं लास्ट में एक्सप्लेन करूँ. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. हाइड्रोलॉजी, अगेन स्ट्रीम, स्ट्रीम एज, रिवर, रिवर सेंट्रल लाइन, ये सब है. एंड इसमें भी होगा पॉलीगन, वाटर बॉडी पॉलीगन. ये आपका काम में आ सकता है, वाटर बॉडी पॉलीगन. जब अपने फील्ड में जाके देखोगे कि ये सब डेटा आपका पास ऑलरेडी है क्या, इट इज वेदर इट इज फिल्ड प्रॉपर्ली, दैट इज व्हाट यू हैव टू सी बिफोर प्रोसीडिंग टू द फील्ड. ठीक है ना. ये इसमें आपका अनदर वन, हाइड्रोलॉजी, कल्टीवेशन, प्लांटेशन, प्लेग्राउंड. अगर प्लेग्राउंड है तो आपका गवर्नमेंट लैंड हो सकता है, तो वो भी आप देख लीजिए प्रॉपर्ली डिजिटाइज है क्या, प्रॉपर्ली बाउंड्रीज आया क्या. ओके, वुडेड एरिया, पार्क अगेन मे बी अ गवर्नमेंट लैंड. ओके, so vacant land, again vacant land as your classification in your government, state government, how whatever the classification is there, whatever it is there, it should be proper, and you should check that before proceeding to the field. Next comes the final layer, building. Building में क्या दिया है? Building footprint, building model 2D, building model 3D, this is again building footprint 3D. ये दोनों काम की चीज है. Building model छोड़ दीजिए. Okay, we will not see that building model. This building footprint, this one is 2D extracted, this one is 3D extracted. 2D extracted means how it is looking like. This is the ORI of that area. ये आप लोग इस एरिया पे जाओगे कल, लोड नहीं हो रहा. So you people, one team will be going to this area of Kondapur. Okay, and another team will be going to this area, right? Okay, so you can see. And there is, and this layer I have not shown you, there is something called property markers. Okay, again very clearly this name has been coined, that is marker only. It is giving you an support, okay, to view that, okay, visualize that. It is not that exact property. वो property layer नहीं है. आपको visualize करने के लिए, आपको help करने के लिए, मदद करने के लिए ये दिया हुआ है, draw किया हुआ है. Okay, इसमें क्या क्या लिया है? बाउंड्री वॉल, फेंस 3D, फेंस 3D में, हेज मतलब जो प्लांट्स जो लगा हुआ होते हैं, बिल्डिंग जंक्शंस जहाँ पे वेरी क्लोजली बिल्डिंग बनाया हुआ है तो वो भी लिया होगा. ओके, एंड बिल्डिंग जंक्शंस 3D एंड बाउंड्री वॉल 3D, ये दोनों हमारा बहुत काम किए. बिल्डिंग वॉल, बाउंड्री वॉल 2D and बाउंड्री वॉल 3D. So for all purposes we will consider that 3D extracted data is more correct and we will be using that only. Okay, तो आप ये मान के चलिए मैं ये सबको ऑफ कर दूंगा.
only building wall 3D is there. Sorry, boundary wall 3D is there. And building, I am switching off this one also, this one also, this one also. And 3D extracted, building footprint also is there. ठीक है ना? आपको ORI में एक कंपाउंड वॉल नहीं दिख रहे ना? He has digitized a compound wall here. Sorry, boundary wall here. Using 3D. He has visualized that one. That is why he has made it. Okay. आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहे. But on going to that ground, if you feel that this corner is correctly, he has digitized, and he has given that correctly, as digitized correctly, on going to the field only. Okay. Then directly you can put a mouse cursor there. Directly you can take this point as the property parcel, and you are knowing that is the end of the property parcel also. Okay. हो सकता है उन्होंने boundary wall कहीं दूर भी बनाया होगा, वो हमारा problem नहीं है. If at all he has made the boundary wall exactly on this property parcel only, and you are going to take this point, not from this one, directly you will be clicking on that using the mobile application. ठीक है, आपको मोबाइल एप्लीकेशन में ये सब दिखना चाहिए, बाउंड्री वॉल दिखना चाहिए, बिल्डिंग फुटप्रिंट दिखना चाहिए. Suppose here you see, here he has made the building footprint. आपको लग रहा है कि यही बिल्डिंग का, इस बिल्डिंग का यही एज है, प्रॉपर्टी है, पार्सल इतना ही लिमिट है. ओके, देन यूज दिस वन और यूज दिस कॉर्नर. यहाँ पे क्या क्या सिंगल दीवार है. नहीं, आई एम फॉर गिविंग एग्जांपल फॉर यू. ओके, आप आपको देखिए ये ORI से तो कुछ नहीं दिख रहा है. ओके, देन मे बी दैट ORI क्वालिटी मे बी इम्प्रोवाइज्ड, लाइक दिस वन इज नॉट दैट गुड एक्चुअली. ओके, यहाँ से आपको जो पॉइंट है सीधा उठा सकते हैं ये डाल के. अब बताइए अभी इसमें क्या आपका डाउट है? See, he has done it exactly. If this building has been exactly done on the property layer parcel only, so it is up to the property parcel limits. Take the, if you want, you can take this coordinate. Okay. सर एक मिनट. हाँ. ये तो जो हमने बनाया कुछ बनाया वो है. अगर हमारा पुराना मैप हो तो उसको कैसे शो किया जाएगा? इसके पीछे हमारा पिछला मैप भी है, जेनेटिक मैप है, उसको इसमें कैसे शो किया जाएगा? ये मैप पिछला और नया जो है वो उसको डिफाइन करने के लिए बनाया है. हाँ? ऐसे सोचिए, आपके पास पुराना मैप है, हमारा बेंगलोर में पुराना मैप है. सर वो पुराना मैप हमारे पास तो नहीं है. That you can only tell. Okay, हमें उसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं. आप उसमें बताइए कि वो, see we have got a layout plan of a particular area. इस एरिया के पास इस एरिया का layout plan था. Okay, we have tried to zero that and make to shape. स्टार्टिंग इसका layout plan था. Okay, layout plan को हम लोग बिठाने के लिए कोशिश किया, but it was not up to the on to the scale. वो स्केल में से तो मैं नहीं बनाया, हमें खींच के आज के बिठा दिया, तो अभी टेढ़ा मेढ़ा बैठ रहे. तो इसमें से क्या होगा, आपको जो लेआउट प्लान से आपको खुद पता है, लेआउट प्लान में तो डायमेंशंस लिखा होता है, उससे आपको जो फायदा आएगा, रोड का विड्थ पता होता है. एंड इसमें जो SOP में वेरी क्लियर कट इट हैज बीन मेंशन दैट गवर्नमेंट लैंड्स विल बी सर्वेड फर्स्ट. ओके, सो रोड का जो एक्सटेंट है आप उसको पहले सर्वे करोगे and government lands को पहले सर्वे करोगे, then you will come to the private. सर हमारा तो फिलहाल कर लेते हैं और कर्मों में उसी रहती है. सर उसको कैसे करेंगे, उसको कैसे वाराई का स्केल दिया हुआ है, वाराई का मैप का स्केल दिया हुआ है. ORI का तो scale well नहीं है सर, ये ORI it can be zoomed. There is nothing called a scale in ORI.
मैंने एसओपी में पढ़ा है, ये इतना तो मैं बोल सकता हूँ। एसओपी में जो दिया है वो इतना मैं बोल सकता हूँ। अनुराग से अनुराग, हाँ, एसओपी में ऐसे दिया है कि जो आपका पास रिकॉर्ड्स है, ओके, चाहे जियो रेफरेंस हो नॉन जियो रेफरेंस, स्टेट गवर्नमेंट विल ट्राई टू जियो रेफरेंस द विलेज मैप एंड ट्राई टू ओवरले ऑन द ओके, करके इसको बिठाना करेगा, इसको बिठाना पड़ेगा। उसमें तो सर्वे नंबर्स होगा आपका, सर्वे नंबर्स होगा है ना, सर्वे नंबर से आपका प्रॉब्लम, हाँ, यू हैव टू टेक सर्वे नंबर्स फ्रॉम दैट, राइट। तो हमारा जो इसका विलेज मैप था, हमें जो बिठाने के लिए कोशिश किया, तो ऑन करना है। लेकिन आप वो जो विलेज मैप कितना सही बैठेगा इसके ऊपर, वो तो वो सही में बैठेगा, फिर सही में बैठेगा। ये देखिए, ये सर्वे नंबर है, ये सर्वे नंबर है, ये विलेज का ब्लॉक है, ठीक है, विलेज ओके। Satisfy this project has been consumed. वो पुराने डेटा कैसा लाना है, ठीक है, वो तो satisfy this project। Sir, these are the legal things and the revenue issues which are solved with the state government. हमें टेक्नोलॉजी के बारे में आपको क्लियर करना है कि ये टेक्नोलॉजी यूज करके आपको ये कंपाउंड वॉल का कोऑर्डिनेट कैसा ले सकते हो, ओके। बाकी जो उसका जो प्रॉब्लम, इंटरनेट प्रॉब्लम्स है विलेज मैप के अंदर या रेवेन्यू में प्रॉब्लम्स है, जो आपका जो एक्सचेंज के बारे में, ओनर नेम के बारे में या कहीं दूसरी जगह पर है, ये तो दैट शुड बी डन विद द स्टेट गवर्नमेंट। हमें ये टेक्निक हमें हाँ, all these types of combination. that yes, How to superpose the map, how to superpose layout, how to remove the errors. हम कर रहे हैं सर्वे मैम, हमें जो हमारा पिछला मैप हमारा को डिस्चार्ज वही बात किया और हम कर रहे हैं कि से जो हम बिजनेस सिस्टम है वहां हम पूरा स्पॉट है, स्पॉट उसको जो और बाद में उसको जो हमारा पिछला छोड़ा मैप है उसको तो जो पूरा मैप का पूरा है उसको ही ये जो बात है ना वगैरह से एसओपी इसको इसके ऊपर ध्यान देना। इसलिए बहुत जरूरी है। sir, that problems will be different in different scenarios also, sir. That can be not be ideal solution for every problem. ये तो आपने ये है, अगर थोड़ा सा अगला भी आप जैसे एरिया आगे भी समझ आता है तो जो ऑन ट्रैक वो ट्रैक हमारे साथ फेस करेंगे। तो सर समझ लो उनका समझ लो एक ओपन कर दो ना, एक विलेज में पुराना तो वो तो नक्शा प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। चलो ठीक है, डेटा नहीं आ रहा, इसका प्रॉपर्टी को See, we will be telling the technique how to capture this. Suppose अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट लेना है, एग्जाम्पल आई एम टेलिंग, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेना है, ये रोड है, ओके, यहाँ पे कोऑर्डिनेट लेना है तो आपका जीपीएस काम करेगा नहीं भी कर सकते। So in that cases, we अरे देखो क्या बात है, in that cases
इसको कोऑर्डिनेट कैसे लेना है? दैट विल बी थ्रू ETS. ओके, वो तो आपको कुछ नहीं बता देगा कि ऑन द ग्राउंड इसका कोऑर्डिनेट कैसा लेना है. ठीक. मेरा जो ये था कि coordinate of that particular area that is very clear. अगर मान लीजिए किसी if and all this coordinate is very clearly visible on the ORI itself and you are very confident that you can take the coordinate. ले लो. आपको मान लीजिए कि इसी if at all you want to take 100 points out of 100 points 10 to 20 points ORI से मिल जाएगा तो भी बढ़िया है. My question is that if the points are given on the ORI, मत करिए, आप मत करिए ना. आप see why we do not know whether that is a property parcel. We do not know. वो तो उन्होंने आगे भी बनाया होगा, रोड पे भी बनाया होगा कंपाउंड वॉल. किसको पता है? अगर मान लीजिए इसको कंपाउंड रोड पे इनका जगह पे बना दिया, who knows? That is what. When you are going to the field, वो पता चलेगा. but I think if there is no कॉन्फ्लिक्ट इसमें नहीं है तो आपने सीधे ले सकते हैं. then property will be digitized accordingly. Compound wall will be digitized. Then you can convert that into a property parcel as per your wish. Property parcel, there are two layers, one open layers and one built up layer. So we have to consider open land also and built up area. तो यहाँ पे तो उनका सेटबैक दिया हुआ है. This is the footprint. Okay, this is the building footprint. यहाँ अच्छा, पे इसमें आपके देखो ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं ये क्लियरली डिमार्केटेड है. If there is no dispute, we can हाँ, decide we that can it is just- not necessary to take road reading, ETS and everything. It is a clear place to give the conclusive title to them. सर यही तो मैं बोल रहा हूँ. ये यहाँ बैठ के एक कंक्लूसिव टाइटल देने के लिए हम बात ही नहीं कर सकते because you do not know whether he has occupied the road or not. What is the reality that the people who are seeing from this ORI, उनको क्या पता है उन्होंने इस तरफ आया इस तरफ आया. आपने जाके ग्राउंड में जाके वेरीफाई करोगे then you will come to conclusion. That is why property parcel is never being given to you. That is only a indicators which are given to you. आप उससे बनाओ जो बना. Yes, you are right. वो कह रहे हैं कि यही प्रॉपर्टी हमें यही तो बात है सर. हमें तो वही इस चीज को लेके हमें बोल रहे हैं, समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि see this you are here, you have got property parcel, you have got your compound wall आपको दिख रही है property parcel है, हमें डिसाइड कर सकते हैं. बस हम ये क्यों अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो एरिया है ये जितना एरिया इससे निकल के आ रहा है अगर उसके डॉक्यूमेंट से मिल रहा है तो ठीक है. not only document, there is no objection of others. अगर नहीं उसके 2400 स्क्वायर फीट है तो है. in this case where there is a property parcel तो वो डिटेल्स का तो कुछ नहीं पता होगा. He will not mark anything on that ground. You will go and verify where that his parcel is there. There you will put the GPS and you will take the code. Cornerstone नहीं है मान नहीं होता. Cornerstone कुछ भी नहीं है मान लीजिए there is nothing. So that is where you have to put your GPS, GNSS, take the boundary parcel vertices, and you have to take the finalize the boundary parcel. In that case also if you are preparing a road it means what? It means you are creating one side boundary of that plot. Sir, again I am telling you, road is a topographic feature. Topographic feature वो roads के साइड में shoulder भी हो सकता है, किसका पता है? तो road में भी 20 feet, okay, road बनाया होगा, तार बनाया होगा 10 feet में. जो डिजिटाइज करेगा उनको वो 10 फीट ही डिजिटाइज करेगा, थोड़ी ना उनको पता है कि 20 फीट कहाँ है. इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. उन्होंने जो 5 फीट छोड़ा है हो सकता है उन्होंने 6 फीट इस तरफ छोड़ा, 4 फीट इस तरफ छोड़ा. वही डिजिटाइज करेगा आदमी, वही डिजिटाइज करेगा. आप अगर मेरा जगह पे हो आप भी वही बोलोगे कि यू विल आल्सो टेल द सेम थिंग, यू विल डिजिटाइज ओनली द ब्लैक. सर दिस इज अ टिपिकल प्रॉब्लम ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट. सर हमें वो इसमें आप यू आर द बेस्ट टीचर. So, sir, this data will be given to you, sir. Feature extracted 2D, 3D जो भी है वो feature extraction है. 3D data जहाँ पे ही match हो रहा है instead of your process, you use that and take the coordinate. This data will be given to the
I am hoping that it will, this mobile application will be ready. Okay, directly we will get the coordinate on the mobile application. If at all it is not there, we have other solutions also. We'll see that. Okay, sir, I am hoping that tomorrow morning you will be showing that mobile application wherein you can take the data. You will take the data using the DNS coordinate and coordinate इसमें आ जाएगा. Point इसमें आना चाहिए. Give your desired function. Try out this. So any doubts in it? कल जाके आइए, हमें डिस्कस करेंगे. Sir, see, invariably we'll start at 8:30. Okay, maximum we'll wait till 8:45. तो उसके बाद जो नहीं आया, don't have any part feelings. We have bound to see. एक आदमी, दो आदमी की वजह से I cannot stop other 30 people. ये मन में रखते हुए अगर मेरा इंस्ट्रक्टर नहीं आया तो भी मैं लेके चला जाऊंगा.